Hello friends, how are you all? Today we are going to talk about ICR Net. Many students have requested to make a video on ICR Net, especially with reference to agricultural extension. So आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। आज हम देखेंगे कि ICR Net के लिए हम तैयारी कैसे करें एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में। So first of all, let's talk about ICR Net. ICR Net, why we need to crack ICR Net? So those students who crack ICR Net और जिनको ICR का नेट मिलता है, they become eligible to become assistant professor in agriculture universities. यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं एंट्री पॉइंट में, तो ICR Net इज मस्ट। फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हम लोगों को एक एडवांटेज और है सोशल साइंस में, हम लोग यूजीसी नेट, वी आर ऑल्सो एलिजिबल टू गिव यूजीसी नेट जेआरएफ अंडर अडल्ट एजुकेशन। सो द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर दिस विल बी प्रिपरेशन होल ब्लूप्रिंट कि आप कैसे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करें अडल्ट एजुकेशन में। इसके बाद का वीडियो वो रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईसीआर नेट। सो द फर्स्ट थिंग विच वी डिस्कस्ड इज आईसीआर नेट इज रिक्वायर्ड to become eligible for assistant professor in different agriculture universities. Now we will look into the units. जो syllabus है, अगर आप syllabus download करेंगे ASRB की वेबसाइट से, so there are 10 units in the syllabus. तो आज हम unit by unit discuss करेंगे कि what are the important topics in each unit and what are the books you need to refer, you need to prepare from those books इन ईच यूनिट। तो हम आज बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस टॉपिक को किस बुक से करना सबसे बेहतर रहेगा। तो कौन से हमारी सब्जेक्टिव बुक्स होंगी यूनिट वाइज, कौन सी हमारी ऑब्जेक्टिव बुक्स होंगी एंड ओवरऑल हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। आगे से बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, दोज हु आर माय रेगुलर सब्सक्राइबर्स एंड दोज हु हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस academic if you want this type of academic content। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आई हैव मेड सेपरेट मॉड्यूल्स ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो यू कैन रिफर टू दोज units also in which I have explained all the concept of agriculture extension. So unit 1, unit 2, unit 3, all the modules which I have uploaded step by step you will see. In the first module I have covered concept of extension, then agriculture communication, then we have talked about research methodology और जो सीरीज है वो चलती जा रही है और soon मैं अपने अगले यूनिट भी अपने चैनल पे लेके आ रहा हूं। So आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। So let's get started and look upon the different units of ICR Net and let us see, explore what are the books and what are the topics. So looking into the syllabus of ICR Net, you will find that there are 10 units in your syllabus. The first unit is all about fundamental of extension and communication. And if you go specifically about the lines mentioned in this unit 1, so you will find that this unit 1 is basically comprising of 4 important segments of extension. The first one is basics of extension. The second one is agricultural communication. The third one is rural sociology. And the fourth one is pre and post development efforts. अगर आप लाइन टू लाइन देखेंगे तो फर्स्ट 4 to 3 lines is saying about the basics of extension. Then there is some rural development, means these are the pre and post extension development programs. Then there is a significant portion of communication also, credibility, empathy. These are the basic units in communication science. And then there is a tinge of sociology also. This rural institute, social structure, culture, norms, this all comes under sociology. So if you look into this unit, the important 4 elements are there. So now let us look into these 4 elements one by one. So the first is basics of extension. So the first book I will recommend you, and you might be knowing, Extension, Communication and Management by G.L. Ray. You see the first unit. The first unit is education, informal, non-formal education, need for extension, levels of extension, philosophy of extension, objective of extension, function of extension, and extension educational process. Likewise, teaching learning process, then principles of extension and all this. This is the basic first unit I recommend, and you must read line by line of this first unit. So basic of extension, one book I am recommending you, Extension, Communication and Management. Second is the Dimension of Agriculture Extension by A.K. Singh, Lakhan Singh and R. Roy Burman, another wonderful book. And here also you will find the first unit is Fundamental of Extension Education, where you will again come across the definition of extension, principles of extension, functions of extension, and all the basic units or the basic syllabus of basics of extension is covered again in this unit. Again, for diversity you can read O.P. Dhama and O.P. Bhatnagar book, Education and Communication for Development. You can see extension education, the basics of extension, philosophy of extension, principles extension education. You can see in 3rd chapter it is given in a very wonderful way.
these three books are there. Then there is one another book written by Dr. B. Kumar, a wonderful teacher, New Trends in Extension Education. So you can see the first unit, Extension Science and Profession, History of Extension, and the Spirit and Philosophy of Extension. These three units is the basics of extension you can cover from here, and it has been given by sir in a wonderful way. समझा के सर ने बताया इसमें, और स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया है, और बहुत रैशनली और बहुत ही मेरिटसली ये बुक लिखी गई है. तो ये भी बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा. ये 3 यूनिट आप पढ़ लेंगे. सो बेसिक ऑफ एक्सटेंशन यू विल कवर फ्रॉम दीज बुक्स. देन अगेन देयर इज अनदर बुक डॉक्टर बी कुमार एंड बी हंसरा, जो हम ट्रेनिंग में रिफर करते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सो यू विल अगेन फाइंड फिलोसफी ऑफ एक्सटेंशन, व्हाट इट इज गिवन, व्हाट इज फिलोसफी एक्सटेंशन, एसेंस ऑफ एक्सटेंशन. सो दिस पार्ट ऑफ your ICR NET syllabus, if you read these books, then not only the basic of extension is covered, but from these 4 books which I recommended, if you read these units, then your basics of extension will become strong. This will help you in cracking SRF exam also, and this will help you in UGC NET JRF also, and this will help you in ARS pre also. So these 4 books, Extension Communication Management, Dimension of Agriculture Extension, OP Dhama Bhatnagar, and New Trends in Extension Education, and Extension Education for Human Resource Development, these 4 books में से आपको basics of extension पढ़ना है. Now coming to the second segment in the unit 1, Agriculture Communication. So there is wonderful book, textbook on agricultural communication, written by A.S. Sandhu. So you can see the meaning and nature of communication. यहाँ पर दिया है origin, definition of communication, nature of communication, purpose of communication, levels of communication. Then communication effectiveness. Then they have given communication theories and model, which is very important. The different models of communication all have been mentioned in this book in a wonderful way. So this is again another book you should refer. और देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें, देखिए सारे मॉडल्स हैं. Then communicator, all the characteristics of communicator. Then message treatment is also there. कोड कंटेंट, हम जो बात करते हैं मैसेज के अंदर वो भी है, एंड मैसेज के जो डिस्टॉर्शन होते हैं, व्हाट आर द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन मैसेज, वो भी मेंशन्ड है. चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी यहाँ पर इसमें अच्छे से मेंशन्ड है. देन ऑडियंस रिसीवर भी मेंशन है. रिलेशनशिप इन कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजीज, रेडियो, टेलीविजन, दिस हैज बीन की कम्युनिकेटर्स. इट इज मेंशन्ड इन यूनिट 1 इन ICR NET syllabus overall of communication process. देन अगेन दिस अगेन आगे भी एक यूनिट में आपके ICR NET में ये मेंशन किया गया है. तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड इज अगेन इन योर सिलेबस ऑफ ICR NET. अभी दूसरी यूनिट में ये लिखा हुआ है इन्होंने. तो ये बुक में आपको मिल जाएगा इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड, मास कॉन्टैक्ट मेथड. बहुत ही अच्छा किताब है. तो दिस बुक आई विल रिकमेंड यू लाइन बाय लाइन, ईच एंड एवरी चैप्टर यू हैव टू रीड इट. सो अगेन इट विल हेल्प यू इन SRF, ARS pre and UGC NET JRF also. Then coming to the third segment is rural sociology. तो again you can see refer to Extension Communication Management book by GL Ray. Rural Sociology and Psychology यूनिट को आपको पढ़ लेना है. तो इसमें आपका जो सिलेबस में मेंशन्ड है, नॉर्म्स, मोर्स, है ना, ये सोशल वैल्यूज, कल्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये सारा इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है. तो दिस यूनिट को अगर आप पढ़ लेते हैं इस बुक में से, तो आपका वो सोशोलॉजी कवर हो जाता है. अगेन द बुक डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें भी रूरल सोशोलॉजी यूनिट दिया गया है. तो यहां से रूरल सोशोलॉजी कवर कर लेना है. अब आते हैं हम प्री एंड पोस्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स में. रूरल डेवलपमेंट जो मेंशन किया गया है उसमें ये बहुत सवाल पूछते हैं रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से. सो एक बहुत अच्छा किताब है जिसमें बहुत डिटेल में ये कवर किया गया है. वो किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट, रिटन बाय सागर मंडल एंड GL रे. ये बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूं. बहुत अच्छे से इसमें रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कवर किया गया है एंड इन अप्रोचेस वे. सो फर्स्ट अप्रोच इज टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, स्पोरेटिक अप्रोच, मल्टीपर्पज अप्रोच, टेक्नोलॉजिकल पैकेज अप्रोच एंड टारगेट ग्रुप एंड एरिया स्पेसिफिक अप्रोच. सो यू कैन सी ऑल द प्री डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड देन पोस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैज बीन मेंशन्ड हियर. तो ये चाहे आपका मार्थिंडम प्रोजेक्ट हो, श्रीनिकेतन हो, गुड़गांव हो, नीलूखड़ी एक्सपेरिमेंट हो, ये सारा इसमें दिया गया है. देन चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर प्रोग्राम हो, IRDP अप्रोच हो, ये सारे इसमें प्रोग्राम दिए गए हैं. और अगर इस बुक में देखेंगे तो सारे आपके रिसेंट जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो भी आपके दिए गए हैं रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्ट्रेटजी इन इंडिया चैप्टर में. देन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी दिए हैं, प्रोग्राम जो हॉर्टिकल्चर भी दिए हैं, प्रोग्राम एनिमल हस्बेंड्री भी दिए हैं. तो आप देख सकते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कौन कौन से हैं, ये आपको कवर कर लेना है सारे के सारे. इसमें सबसे अच्छी बात है IVLP, ये भी आपके ICR NET के सिलेबस में स्पेसिफिकली आगे यूनिट में मैं दिखाऊंगा, लिखा हुआ है IVLP, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन सेंटर, NAIP,
भी ये दिस यूनिट is very important unit mentioned and given in this book. So highly recommended book, textbook of entrepreneurship and rural development. इसमें से आप rural development programs को कर लीजिए। और देखेंगे एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट GLRE में भी सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन इंडिया, इसके अंदर फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम दिया है, अर्ली एक्सटेंशन एफर्ट्स दिए गए हैं, नेशनल एक्सटेंशन सिस्टम्स दिया गया है, और NATP, NAIP, नरेगा, पूरा, ये सारे प्रोग्राम्स इसने भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये यूनिट भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ठीक है, सो अब आप समझ रहे होंगे कि आपका जो यूनिट का सिलेबस में है, हर यूनिट के लिए अलग अलग किताबें हैं और उन किताबों में से क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको आज स्पेसिफिकली बता रहा हूं। अगेन प्री एंड पोस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आप इसमें से भी कर सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया दिया गया है डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन किताब में भी। तो आप यहां पर देखेंगे प्री एंड पोस्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स, आपको ओपी धामा, ओपी भटनागर किताब में भी देखेंगे। तो ये किताबें ऐसी हैं जिनमें सारे यूनिट्स हैं। तो हर किताब से अगर इन डिफरेंट यूनिट्स को पढ़ लेंगे तो आपके पास डाइवर्सिफाइड नोट्स होंगे और आप अपने नोट्स बनाते रहिए तो आपके पास वेरिड नॉलेज होगा, तो कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। अगर किसी बुक ने कोई पॉइंट मिस किया है तो दूसरी बुक ने उसको कवर कर लिया है। सो हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एफर्ट्स यू कैन सी ऑल द प्री इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, देन पोस्ट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स और दूसरे कंट्री के भी एक्सटेंशन सिस्टम इन्होंने बहुत अच्छे से इसमें दिया है। सो ओपी धामा भटनागर बुक हो गई आपकी, है ना, आपकी डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो गई, GLRE की किताब हो गई, और टेक्स्ट बुक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट हो गई प्री एंड पोस्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें आप चाहें तो प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एफर्ट्स है, ओपी धामा भटनागर किताब में आप CDP प्रोग्राम्स बहुत डिटेल में दिया है उन्होंने। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इस प्रोग्राम्स के बारे में निकाल सकते हैं। ठीक है, आप एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में देखेंगे तो एक्सटेंशन वर्क इन इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस एफर्ट्स, एक्सटेंशन एफर्ट्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस, फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, यहां पर भी इस किताब में भी मेंशन किया गया है, B कुमार एंड BS हंसराज जी की किताब में भी। ठीक है, तो दूसरे यूनिट से पढ़ने से पहले एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपकी हो गई। फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको क्लियर कट बताया कि फर्स्ट यूनिट में आपको 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को कवर करना है। बेसिक ऑफ एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन, रूरल सोशियोलॉजी, प्री एंड पोस्ट डेवलपमेंट एफर्ट। बेसिक ऑफ एक्सटेंशन कहां से करना है? GLRE किताब से, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से, ओपी धामा भटनागर से, न्यू ट्रेंड्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन से, एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से, एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन और टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन से करना है। देन रूरल सोशियोलॉजी GLRE से करना है, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से करना है, प्री एंड पोस्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स आपको टेक्स्ट बुक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट से करना है, GLRE से कवर करना है, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से कवर करना है, धामा भटनागर किताब से कवर करना है, और एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से करना है। तो फर्स्ट यूनिट इतना कर लेंगे तो आपका जो बेसिक है फर्स्ट यूनिट के लिए वो बहुत 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 स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ मूविंग कमिंग इनटू द सेकंड यूनिट, एक्सटेंशन मेथड्स एंड फार्म जर्नलिज्म। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग इन्होंने डाला है। देन यानी आपको जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो डाले हुए हैं। देन इन्होंने क्लासिफिकेशन डाला है ना, इंडिविजुअल ग्रुप मास मीडिया मास अप्रोचेस का। देन उसके बाद इन्होंने जर्नलिज्म डाला है, बुलेटिन्स, फोल्डर्स, बुकलेट, न्यूज़लेटर ये डाला है, रेडियो स्क्रिप्टिंग ये सारा डाला है। तो 2 प्रकार से इसको अगर आप डिवाइड करो तो 2 पार्ट्स में हो गया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस और दूसरा आपका हो गया एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। तो इसके लिए कौन कौन सी बुक है? तो पहली बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में टीचिंग लर्निंग के लिए। तो आप यहाँ देखें तो पहले ही यूनिट में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरा अच्छे से इन्होंने दी है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। इसके साथ जो एक्सटेंशन मेथड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स के लिए टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन में एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स करके चैप्टर है। AS संधू की जो किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन, इन दिस देयर इज अ पार्ट 2 एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। यहां पर आप देखिए इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, फार्म एंड होम विजिट पढ़ना है, फार्मर्स कॉल, पर्सनल लेटर्स, फ्लैग मेथड, एग्रीकल्चर क्लिनिक्स। देन ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड्स पढ़ना है, ग्रुप मीटिंग, ग्रुप डिस्कशंस, कंडक्टेड फार्म टूर्स, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, पेरिपेटिक टीम यूनिट्स, एग्रीकल्चर गेम्स, मीडिया फोरम्स। देन मास मेथड में एक्सटेंशन कैंपेन, एग्जीबिशंस, फार्मर्स फेयर, सर्कुलर लेटर्स, फार्म एंड होम टेलीविजन प्रोग्राम, एग्रीकल्चर फिल्म। सो ये भी आपके सिलेबस में लिखा गया है। देन ऑडियो विजुअल एड्स इस यूनिट में है, तो आपको यहाँ से मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, क्लासिफिकेशन ऑडियो विजुअल एड्स, देन ग्राफिक एड्स, प्रोजेक्टेड एड, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, मॉडल्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी यहाँ से इस किताब से पढ़नी है। देन यहाँ पर आप GLRE की किताब में एक कम्युनिकेशन मेथड्स करके भी लगा हुआ है, वहां से एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। इंडिविजुअल मेथड्स, ग्रुप मेथड्स एंड मास मेथड्स, यहाँ पर भी आपको ये पूरा यूनिट्स मिल जाता है।
ठीक है। देन जर्नलिज्म का है, एक बुक है जो हम रिकमेंड करते हैं, जर्नलिज्म फार्म जर्नलिज्म कम्युनिकेशन स्किल बाय GL रे एंड सागर मंडल। और इसमें जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो पूरा अच्छे से दिखाया गया है कि जर्नलिज्म, टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जर्नलिज्म, रोल ऑफ जर्नलिस्ट एंड डिफरेंट टाइप न्यूज़पेपर हो, पॉपुलर आर्टिकल्स हो, मैगजीन्स हो, सब में आर्टिकल किस तरह से बनते हैं, न्यूज़ आर्टिकल किस तरह से छपते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर, देन बुलेटिन क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, लीफलेट क्या होता है, बुकलेट क्या होता है, न्यूज़ लेटर क्या होता है, पॉपुलर साइंटिफिक आर्टिकल्स क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होते हैं, ये सारा इस किताब में लिखा गया है। सो फॉर दिस सेकंड यूनिट आई विल रिकमेंड यू GL रे बुक, आई विल रिकमेंड यू आर टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन AS संधू। कौन सी यूनिट पढ़नी है मैंने बता दिया। देन जर्नलिज्म एंड फार्म जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बाय GL रे एंड सागर मंडल। तो 2 यूनिट आपकी अच्छे से कवर हो गई। नाउ कमिंग टू द यूनिट 4, थर्ड यूनिट मैंने अभी छोड़ी है क्योंकि मैं उसको एंड में कवर करूंगा कि थर्ड यूनिट को कैसे करना है। सो कमिंग टू द फोर्थ यूनिट, ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स की बात की गई है, ट्रेनिंग की बात की गई है, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड यानी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं वो बात की गई है। देन इसके बाद आपके डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स देखिए सिलेबस में है, ट्रेनिंग मेथड्स, लेक्चर्स, डेमोस्ट्रेशन, केस मेथड, ग्रुप मेथड, सिंडिकेट मेथड, बिजनेस गेम, सिमुलेशन एक्सरसाइज, टी ग्रुप मेथड। देन इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग आपके सिलेबस में है, कैपेसिटी बिल्डिंग आपके सिलेबस में है। सो आई विल रिकमेंड यू फर्स्ट बुक, वेरी वंडरफुली रिटन बुक, एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये पूरा ट्रेनिंग का ही बुक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रेनिंग का ही इसमें पहले उन्होंने एक्सटेंशन का बैकग्राउंड दे दिया, हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन दे दी। उसके बाद अब आप देखिए आपके यहाँ पर ट्रेनिंग के सारे देखिए मेथड्स दिए हुए हैं। यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन, ऑफिस कॉल, एक्सटेंशन टॉक, मीटिंग, ग्रुप डिस्कशन, फील्ड ट्रिप, एक्सटेंशन कैंपेन, फील्ड डे, रेडियो, सर्कुलर लेटर्स, रूरल पब्लिकेशन, सारा सब कुछ इन्होंने पूरा रूरल डेवलपमेंट का दिया है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आता है, चैप्टर आता है, चैप्टर 4, दैट इज ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वेयर दे हैव गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट ट्रेनिंग कैन डू, लिमिटेशन ऑफ ट्रेनिंग, डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, देन ट्रेनिंग प्रोसेस, प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग, स्टेप्स इन ट्रेनिंग, ये सब दिया गया है। न्यू कॉन्सेप्ट इन ट्रेनिंग, एंड्रोगॉगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजी, माइक्रो लैब, फार्मर्स ट्रेनिंग, ग्रोथ ऑफ फार्मर्स ट्रेनिंग इन इंडिया, ट्रेनिंग ऑफ रूरल लीडर्स, ये सब सिलेबस में है। तो आपको ये लाइन टू लाइन पढ़नी है। और आप अगर चाहें तो चैप्टर 5 ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी भी इसमें पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा दिया है। सो ये आपका SRF के लिए भी बेस बनाएगी, ARS के लिए भी बेस बनाएगी, UGC नेट JRF के लिए भी बेस बनाएगी और ICAR नेट के लिए तो बेस बनाएगी ही बनाएगी ये किताब आपको। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। देन अनदर ट्रेनिंग एक आप यहां से भी कवर कर सकते हैं, ट्रेनिंग फ्रॉम डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, 21 सिंह, लाखन सिंह, रॉय बर्मन की ट्रेनिंग का यूनिट है। अगेन आप सब पढ़ लेंगे तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, मॉडल्स ऑफ ट्रेनिंग, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। There is another specific book for training, that is training for development by Linton and Parekh, and mind you this book is written for professionals, so little bit complicated book, but कौन कौन सी यूनिट पढ़ने, व्हाट इज ट्रेनिंग आप पढ़ लीजिए, ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी, 4 स्ट्रेटेजिक इशूज, 3 बेसिक फेजेस, मॉडलिटीज इन ट्रेनिंग, देन ओवरव्यू ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस, 3 फेजेस इन ट्रेनिंग प्रोसेस, द लर्निंग स्पायरल ऑफ पार्टिसिपेंट, द ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना है। खासतौर पर इस बुक से मॉडल्स ऑफ ट्रेनिंग भी पढ़ लेना है। देन 5 स्टेप्स इन ट्रेनिंग प्रोग्राम पढ़ लेना है, सोशल प्रोसेस पढ़ना है, ट्रेनिंग मेथड्स, व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स आपको पढ़ लेना है, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग इसमें से पढ़ लेना है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट भी पढ़ लेना है। ये सारे पार्ट आपको इस बुक में से पढ़ लेने हैं। सो ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको 2 बुक रिकमेंड की, लिंटन एंड पारेख, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का यूनिट, और मेन किताब जो ट्रेनिंग के लिए रहेगी एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रहेगी। इन तीनों में से सिलेबस के हिसाब से मिला के आपको सारे यूनिट, सारे टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। Then moving to the next unit, that is unit 5, research methodology in extension education. This is again a unit which is very important. You will see all the topics are related to रिसर्च, चाहे वो वेरिएबल्स से रिलेटेड हो, हाइपोथेसिस हो, देन रिसर्च डिजाइन है, मेजरमेंट, ऑल 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, सैम्पलिंग मेथड्स, ऑल मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, एंड ऑल्सो दे हैव मेंशन PRA, RRA, PLA एंड PTD। तो अब देखते हैं इसमें कौन सी किताब है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आई विल रिकमेंड यू, इट फ्रेड एंड कलिंजर। मेनी स्टूडेंट हु हैव आर इन MSc only they have cracked JRF exam and their base for research methodology is not very broader, so generally वो लोग इसको नहीं पढ़ते और सोचते हैं कि हमें काफ़ी है, लेकिन JRF का लेवल रिसर्च मेथोलॉजी के लिए काफ़ी नहीं है, बिकॉज इन MSc you have to do the thesis work also। ठीक है, सो आई विल हाईली रिकमेंड यू फ्रेड एंड कलिंजर, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, एंड इन दिस बुक इज मस्ट for SRF, UGC NET JRF, for ARS Pre and ICAR NET। ये बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है। एंड वन बेनिफिट विच यू विल reap after reading this book is
आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगा, सो आपका एमएससी का थीसिस भी अच्छा होगा। सो व्हाट इज इसका एक बार सिलेबस देखें, देखिए सब पढ़ना है आपने। साइंस क्या होती है, साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम हाइपोथेसिस, व्हाट इज कंस्ट्रक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, व्हाट आर द डेफिनेशंस। देन ये सेट्स रिलेशन थोड़ा छोड़ना चाहें तो वेरिएंस कोरिएंस पढ़ लें, ठीक है। थोड़ा सा ये छोड़ना चाहें तो आप इसके बाद देखें आप रिसर्च डिजाइन पढ़ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑफ डिजाइन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। व्हाट इज द रिसर्च डिजाइन, व्हाट इज द पर्पस एंड प्रिंसिपल्स। देन जनरल डिजाइन ऑफ रिसर्च कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ रिसर्च, what are the different type of research, experimental, non-experimental, quasi-experimental, there are different type of research, laboratory experiment, survey research. Then measurement, what are the different types of measurement, what are the 4 levels of measurement, nominal, ordinal. You will find a separate module in my YouTube channel. सारे यूनिट्स के नोट्स मैंने वीडियो बना के डाले हुए हैं। फाउंडेशन ऑफ मेजरमेंट्स, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, व्हाट आर द मेथड्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है एंड इट इज अ मस्ट, ठीक है। तो ये किताब आपको रेफर करनी है। एक और किताब है जो कलिंजर के कंपैरिजन में थोड़ी सरल भाषा में लिखी गई है, दैट इज जीएल रे एंड मंडल, रिसर्च मेथड इन सोशल साइंसेज एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। सो इन दिस फर्स्ट यूनिट यू विल फाइंड व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज द difference between research and science and all the important terms here mentioned. What are the different type of research, what is the experimental research, non-experimental research, type of experimental research, type of non-experimental research. Then what is the research process, what are the different type of measure variables, and what are the 4 levels of measurement, which is very important: nominal, ordinal, interval and ratio. This is very important. Then what is hypothesis, what are the different type of research design is there, very important book, very important. Sampling procedure, what are the different type of sampling, ठीक है, चाहे probability sampling हो, non probability sampling हो. Then collection of data, processing of data, epoch analysis, non parametric analysis. What is the difference between test and scale, what are the steps in building scale, what are the important steps in building test, what are the different indices and measurement. Participatory methods they have also given here in this book. So again, highly recommended these 2 important books. The first book is Research Method in Social Science and Extension Education, and second one is Foundation of Behavioral Research. अपने methods, अपने syllabus के हिसाब से इसको compare करके each and every topic को आप cover कर लीजिए, ठीक है। Then again coming to a 6th unit, program planning, evaluation and diffusion and adoption of innovation. If you see this unit, so again you can divide this unit into 2. One portion says about program planning, another portion says about diffusion of adoption. So for extension program planning, there is one book written by A.S. Sandhu, Extension Program Planning. You will find extension program planning, what is extension planning, what is extension program planning, what is rationale behind it, what are the need for principle, what are the sources of principles, need for a model, situation analysis, determine program objectives, all things, developing a plan of work, ठीक है। So you will find each and every unit is important. So this extension evaluation is also in your syllabus. What is evaluation, what is the difference between evaluation, monitoring, what are the different types of evaluation, what is the purpose of evaluation. So you can see this book is very wonderfully written book, Extension Program Planning by A.S. Sandhu. You can cover extension program planning from here. Again, you can cover extension program planning from GL Ray book and other dimension of extension education book. They have different units where this is mentioned, but their glimpses is there in this book. Each and every point of extension program planning has been explained. Another book where you will find is this one, New Trends in Extension Education. You can also find extension program planning here in this book written by Dr. B. Kumar. Concept of extension program planning, terms in extension planning, steps in program planning, यहाँ पर भी रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छे से दिया गया है. Then in extension planning, as I mentioned, in GL Ray book is also there is one unit, extension program planning. Here you can see this unit, you can read this unit. Then the second part of this unit is diffusion of innovations. Diffusion of innovation में हम केवल और केवल एक किताब रिकमेंड करते हैं, which is social science की one of the best book है, Diffusion of Innovations by E.M. Rogers. यहाँ आप देखेंगे तो first chapter, elements of diffusion, and the important point about this book is written in a very simple language, very artistic style with lot of references through case studies. तो case studies आप पढ़ते हैं और theories पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी किताब है. The innovation, communication channel, time and social system. These are the 4 important elements of 4 diffusion systems. So first chapter, then second chapter is history of diffusion. Then third chapter is contribution, criticism. Fourth process is generation of innovations.
ठीक है, पूरा पेपर में कोई भी क्वेश्चन है इससे बाहर से नहीं आता। ये किताब आपने पढ़ ली तो डिफिनेशन ऑफ इनोवेशन में आपका 100 आउट ऑफ 100 आएगा। देन द इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, आईडी प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। देन एट्रीब्यूशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन एंड द रेट ऑफ एडॉप्शन पूरा दिया गया है। इनोवेटिवनेस एंड अडॉप्टर कैटेगरीज दिया गया है। डिफ्यूजन नेटवर्क्स दिया गया है। ये किताब मैं आपको मस्ट रिकमेंड करता हूँ। चेन एजेंट दिया गया है। इनोवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनोवेशन दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी किताब है। ये किताब तो आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है और एक किताब इस तरह से लिखी गई है कि अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, बोर नहीं होने देती है किताब। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन आई विल रिकमेंड यू एंड आई विल रिकमेंड यू AS संधू एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग फॉर दिस यूनिट 6। तो यूनिट 6 भी हो गई। इसके बाद आगे की यूनिट में चलते हैं। आगे की यूनिट है एक्सटेंशन मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सटेंशन मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा दिखेगा कि हम मैनेजमेंट की बात की है, चाहे वो टोटल मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो, PERT हो, CPM हो, लॉजिकल फ्रेम वर्किंग हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक हो और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के नाम हो। तो आप देख लीजिए सिलेबस में। और जो बुक मैं रिकमेंड करूंगा वो है मैनेजमेंट अ ग्लोबल इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरल पर्सपेक्टिव बाय हिंज वेरिच, कैनिस एंड कुंज। दिस इज द बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आपने देखा भी होगा इस किताब को। तो इसका अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो फर्स्ट इज मैनेजमेंट साइंस, जिसमें इन्होंने क्लासिकल थॉट ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न थॉट ऑफ मैनेजमेंट दिया गया है, थ्योरीज की चर्चा की है। देन मैनेजमेंट सोसाइटी सेकंड किया है। ठीक है, ग्लोबल कॉम्परेटिव क्वालिटी मैनेजमेंट दिया गया है, एसेंस ऑफ प्लानिंग दिया गया है, स्ट्रेटजीज दिया गया है, टोज मैट्रिक्स दिया गया है जो बार बार एग्जाम में आता है। तो ये सारा जो आपका सारा डेल्फी टेक्निक हो, चाहे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो, चाहे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हो, ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट प्लस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, दे ऑल हैव बीन मेंशन्ड इन दिस बुक। अगेन दिस इज रिटन इन अ वेरी वंडरफुल वे। बहुत अच्छी किताब है, बहुत सरल भाषा में लिखी गई है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी इस किताब में दिया गया है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी यहाँ से देखेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी यहाँ मिल जाएगा आपको। ये ह्यूमन फैक्टर मोटिवेशन में आपको देखेंगे, आपको सारी की सारी थ्योरीज मिलेंगी। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स एग्जाम में बहुत बार देखते हैं आप। एल्डर फर्स्ट, ERG थ्योरी, हर्सबर्ग मोटिवेशन थ्योरी, हाइजीन थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मोटिवेशन, इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी मोटिवेशन, स्किनर रेनफोर्समेंट थ्योरी, मैक्लेलन नीड थ्योरी, स्पेशल मोटिवेशन टेक्निक, थ्योरी X, थ्योरी Y, ये सारा का सारा इस यूनिट पे दिया गया है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड इसको आपने पढ़ लिया तो आपका मैनेजमेंट पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगेन इसमें देखेंगे तो इंटरप्रेन्योरशिप की प्रोग्राम्स लगे हैं, थ्योरीज लगे हैं, टाइप्स लगे हैं और SHG की बात है, SAIC की बात है और जो इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू इंटरप्रेन्योर्स हैं उससे बात है। तो अगेन अ बुक इज देयर, अ टेक्स्ट बुक ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसमें मैंने आपको रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए रिकमेंड किया था। अगेन दिस बुक विल हेल्प यू इन इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इस बुक से 13 चैप्टर, 296 to 333 पेज, डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, all the factor responsible for entrepreneurship, theories of entrepreneurship, types of entrepreneur, what is the difference between entrepreneur, manager, ये सब इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। एग्रीप्रेन्योरशिप भी बहुत अच्छे से इसमें आपको देख सकते हैं। आपका SWOT एनालिसिस है, एग्रीप्रेन्योरशिप है, सारी प्रॉफिटेबल जंक्शन है। तो इसमें बहुत अच्छे से इस किताब में दिया गया है, राइट। सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। देन एक यूनिट आता है, यूनिट 10, जेंडर सेंसिटाइजेशन। अगेन आई विल टेल यू क्लियरली दैट देयर इज नो स्पेसिफिक बुक रिटन फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन। अगेन यू हैव टू कलेक्ट नोट्स फ्रॉम different sources, but yes, there is one book which actually we have written. This is again we have tried to compile our notes. My colleague Dr. Suji Sarkar, Dr. Pratibha Joshi and Dr. Debashish Das, we all have the practice of making notes. So first of all, its own kind book हमने निकाला जिसमें आपको 6 units, बेसिक एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो, मैनेजमेंट और जेंडर, हमने इन सब का क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हमने ये बुक निकाला और क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा। तो ARS के मेंस को लेके हमने लिखा है बुक। और इसमें जो जेंडर है, स्पेशली डॉक्टर प्रतिभा जोशी मैम हुई जेंडर एक्सपर्ट, उन्होंने मैनेजमेंट इसमें जेंडर का चैप्टर बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया है। सो दिस बुक इज अ बुक वेयर यू विल फाइंड ऑल द कॉन्सेप्ट, वो चाहे आपके फ्रेमवर्क हो, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, टर्मिनोलॉजीज है, जेंडर की डायमेंशंस हैं, एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स हैं और जितने भी आपके इशूज हैं और डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, दिस ऑल हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द जेंडर यूनिट ऑफ दिस बुक। सो दिस बुक इज देयर वेयर यू विल फाइंड मेमोरी क्वेश्चन पेपर ऑल्सो एंड जेंडर का तो बहुत अच्छे से इस किताब में दिया गया है, हमने बहुत अच्छे से कंपाइल किया है। अगेन सम ऑनलाइन मटेरियल यू कैन
सर्च अबाउट जेंडर, देयर इज लॉट ऑफ मटेरियल, सो वहाँ से आपको इसको कवर करना पड़ेगा, राइट। एक यूनिट जो मैंने शुरुआत में छोड़ दी थी, दैट इज यूनिट 3, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। नाउ अगेन माइंड यू, देयर इज नो स्पेसिफिक बुक बिकॉज दिस इज अ वेरी डायनेमिक एरिया। इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज के थ्रू, ICAR के थ्रू होता जा रहा है। सो दिस इज अगेन एरिया वेयर आई विल सजेस्ट यू, देयर इज नो स्पेसिफिक बुक, अगेन यू हैव टू अपडेट थ्रू ऑनलाइन सोर्सेस। वो मैं बताता हूँ। एक बुक है इसमें, ICTs for Agriculture Extension, Global Experiment, Innovators and Expenses by R. Savanal. So this book is quite क्या है, हाई प्राइस्ड बुक है। तो इंटरनेट में अगर गूगल बुक्स में देखेंगे इसको तो ये मिल जाएगी आपको। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके या प्रिंट आउट लेके इस बुक से आप नोट्स बना सकते हैं। एक बुक मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जिसमें बहुत अच्छे से ICTs, कॉन्सेप्ट ऑफ ICTs, डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ ICTs एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये जो सारे मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, ये बहुत अच्छे से उसमें दिया गया है। तो ये बुक एक मैं रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा एक यूनिट है आपका डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एंड इशूज। इसमें आप अगर देखेंगे तो ये जो आपको GLRA वाला किताब था, एंटरप्रेन्योरशिप वाला किताब था, उसमें TAR, IVLP, NATP, NIP, IRDP, आत्मा, ये सब मेंशन था। वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। FSRE ये GLRA की किताब में भी मेंशन्ड है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो किताब है रेखा, मंडल और रेखा, उसमें भी मेंशन्ड है। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और ये जो यूनिट 9 है और यूनिट ICT है और यूनिट जेंडर है, ये 3 के लिए आपको ऑनलाइन सोर्सेस यानी अपना खुद से कंपाइलेशन सीनियर से ऑनलाइन से करना पड़ेगा। एक सोर्स मैं आपको बता देता हूं, दिस इज द लिंक, I have mentioned it in the description box also. You can download this PDF. Again, this is a resource book for KVK written by Dr. V. Venkat Subramaniam, Sanjeev MV and AK Singha. Again, a wonderful compilation of all the methodologies. तो मैं आपको इसमें एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे है। एक झलक मैं आपको इसके इंडेक्स की दिखा देता हूँ। So this manual you can use it as a revision manual. आपने जितनी किताबें मैंने रिकमेंड की वो सारी पढ़ ली, तो आप इसको एक रिवीजन की तरह यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल द सिलेबस ऑफ एक्सटेंशन। हमने ARS की तैयारी में इसको रिवीजन की तरह यूज किया था। तो SRF, ARS, ICAR नेट और UGC नेट, JRF और SRF एग्जाम के लिए ये बहुत ही अच्छा रिसोर्स बुक है। तो मैं इसका आपको इंडेक्स एक बार दिखा के बता देता हूँ। So friend, this is the PDF which you can download from the link which I have mentioned in the description box, और जिसके बारे में मैंने आपको बताया। So concept, approaches and methodologies for technology application and transfer। आइए इसका इंडेक्स पेज मैं आपको दिखाता हूँ और देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको पोर्शन मिल जाएगा और क्या क्या आपको कवर करना चाहिए इसमें से। So this is the index page of this manual, and this manual consists of almost all the topics of the एक्सटेंशन। सो फर्स्ट देखिए इन्होंने जेनेसिस ऑफ KVK, मैंडेट ऑफ KVK, फंक्शन ऑफ KVK, यानी KVK का पूरा पोर्शन आपको मिल जाएगा। इसमें आपको आत्मा का पोर्शन, SRAP और SRAP क्या होता है, कौन बनाता है, कैसे बनता है, वो पूरा मिल जाएगा। देन आपको ये वाला पोर्शन अगर आप नहीं पढ़ना चाहेंगे छोड़ सकते हैं, चैप्टर 2 छोड़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट अगर पढ़ना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे रिफाइन होती है, टेक्नोलॉजी गैप क्या है, टेक्नोलॉजी फैटिग क्या है, ऑल द टर्म मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन फार्म ट्रायल्स क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, ये आपको मिल जाएगा इसमें। देन इसके बाद ऑन फार्म ट्रायल्स का पूरा डिटेल है, बट आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन में देखिए मेथड डेमोस्ट्रेशन क्या होता है, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन क्या होता है, फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन क्या होता है, फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन वर्सेस अदर डेमोस्ट्रेशन में उसमें डिफरेंशिएट क्या है, उसके स्टेजेस क्या है, ये आपको मिल जाएंगे। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी देखिए, ट्रेनिंग मिल जाएगा, KVK कैसे ट्रेनिंग कराता है, डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग मिल जाएगी, प्री ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग, ये आपको मिल जाएगा। देन देखिए पेडागोजी एंड एंड्रोगॉगी मिल जाएगा, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट इसमें रिवीजन के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए बहुत अच्छे से लिखा गया, डिफरेंट ट्रेनिंग टेक्निक्स, माइक्रो लैब और सारी ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देन देखिए वर्कशॉप, सिंपोजियम, सिंडिकेट, पैनल डिस्कशन, सिमुलेशन मेथड्स, रोल प्ले, स्टेप्स इन इनेक्टिंग रोल प्ले, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, साइकोलॉजी का भी थोड़ा पार्ट इन्होंने दिया है, द पेरेंट ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट, अडल्ट ईगो स्टेट, ये पोर्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद आप देखिए एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट KVK में देखिए आपको एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ये बार बार कभी कभी पूछ लेते हैं, व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट इज फिलोसफी, व्हाट इज थ्योरी, व्हाट इज प्रोसीजर, व्हाट इज अप्रोच, पॉलिसीज, मिशन, मेथड, स्ट्रेटजीज, गोल, एम, ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है ये आपको इसमें मिल जाएगी। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लर्निंग, टीचिंग, इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग एक्सपीरियंस, ये पोर्शन आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे से लिखा है इन्होंने। नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, एट्रीब्यूट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स, देखिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन सर्विस ट्रेनिंग, प्री सर्विस ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, फाउंडेशन ट्रेनिंग, मेंटेनेंस ट्रेनिंग,
ऑन द जॉब ट्रेनिंग, करियर ट्रेनिंग, ये सारा पोर्शन आपको मिल जाएगा, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये आप देख सकते होंगे। आपको इसका इंडेक्स पढ़ के ही आपको लग रहा होगा कितना यूजफुल ये पीडीएफ है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, केस स्टडीज, ग्रुप डिस्कशंस, बस सेशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्ले, बहुत ही अच्छा मैनुअल ये लिखा गया है। अब देखिए इसके एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन भी बहुत अच्छे से सारा इन्होंने यहाँ पर एडॉप्शन, डिफ्यूजन क्या होता है, एडॉप्शन प्रीसेट क्या होता है, रेट ऑफ एडॉप्शन, रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा मैनुअल है, ठीक है। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट भी इन्होंने लिखा है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, नॉइज, कम्युनिकेटर, ये आप देखिए इसका इंडेक्स से ही पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। तो सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर हैं और आपको जस्ट रिवीजन करना है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप देख लीजिए एक्सटेंशन एक्टिविटी भी दिया गया है, SGs भी दिया गया है, सब ये दिया गया है, रेडियो टॉक, फार्मर, आपको सब कुछ मिलेगा। इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी इसमें दिया है। इसमें खास तौर पे मुझे अच्छा ये बात लगी कि इसमें सम रिसर्च मेथोलॉजी भी रिवीजन के लिए है। देखो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे, सैम्पलिंग टेक्निक, रैंडम सैम्पलिंग, पर्पज सैम्पलिंग, स्टेटवाइज सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सब इसमें आपको देखिए दिया गया है। ऑल द 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट दिए गए हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, टेस्ट ट्रस्ट मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड, ये सब आपको दिया है। कौन सा डेटा किस तरह से होता है, ये सब आपको इसमें दिया गया। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी कुछ इसमें मेंशन कर रखे हैं। तो ये जो यूनिट है, एटिक दिया गया है, आत्मा दिया गया है, केवीके दिया गया है, आईसीटी का पोर्शन जो मैं आपको कह रहा था कि डायनेमिक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। आईसीटी क्या है, आईसीटी का डेफिनेशन क्या है, नीड फॉर आईसीटी क्या है, तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इसमें आईसीटी भी दिया गया है। 8 C's ऑफ आईसीटीज, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। ई चौपाल, इंफॉर्मेशन विलेज, वन्ना वाइड विलेज, ज्ञान दूत प्रोजेक्ट, किसान कॉल सेंटर, भूमि प्रोजेक्ट, एक मैग्नेट, MDGs, कियोस्क, ये सब यहाँ पर दिया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिया गया है, इसका मतलब पर्ट दिया है, इसमें CBM दिया है, मैनेजमेंट इसमें दिया है, MBO, स्टेप्स इन MBO, एडवांटेज MBO, डिसएडवांटेज MBO, पर्ट CPM में डिफरेंस क्या है, ये भी यहाँ दिया गया है। WTO दिया गया है, गैट एग्रीमेंट भी दिए गए हैं। तो ये जो PDF है, ये जो मैनुअल बनाया है इन्होंने, ये आप कह सकते हैं एक प्रकार से सब कुछ है इसमें लगभग। यहाँ पर जाके ये कंटेंट पेज खत्म हो रहा है, तो आप इसको देखेंगे, इट्स अ वंडरफुली रिटन PDF। सो आई हाईली रिकमेंडिंग दिस PDF टू यू, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। इससे आप कैसे यूज करेंगे नाउ, इसको यूज ऐसे करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल फ्रॉम ऑल द बुक विच आई हैव रिकमेंडेड, यू रीड द कॉन्सेप्ट, यू मेक द ऑब्जेक्टिव बुक, एंड एट लास्ट फ्रॉम दिस PDF यू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। सो आपको बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। So friends, you should also have a habit of going into ICAR website again and again. Weekly आप रखिए कि Saturday Sundays को 1 hour you invest in this website. So how to read this website? I will make a separate video. मैं सबके लिए बनाऊंगा, but for you important highlights मैं अभी देता हूँ कि here you can see about us में vision documents. So vision documents when you will click, there are 3 important vision documents: vision 2020, vision 2030, vision 2050. इसमें आप देखेंगे तो lot many things you will get for your current affairs के जो क्वेश्चन होते हैं, जो डेटा ड्रिवन क्वेश्चन होते हैं, जो डायनेमिक क्वेश्चन होते हैं, वो आपको इन जगहों से मिलते हैं। इसके अलावा देखिए एनुअल रिपोर्ट्स हैं। इफ यू क्लिक ऑन एनुअल रिपोर्ट्स यू विल फाइंड द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ ICAR ईयर, ICAR एनुअल रिपोर्ट 2023-24। इसको क्लिक करेंगे तो ऑल द न्यू वेराइटीज विच ICAR हैज रिलीज्ड, ऑल द इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज विच दे हैव मेड अप, ऑल द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इनटू ICTs, इनटू KVKs, दे आर मेंशन्ड हियर। सो हियर यू कैन गो एंड सी। देन इसके अलावा आप देखिए कौन कौन से मैगजीन्स हैं, हिंदी मैगजीन्स कौन सी हैं, कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़लेटर है, सारी मैगजीन्स के बारे में आपको यहाँ पर, ट्रेडिशनल नॉलेज इन एग्रीकल्चर, यहाँ पर आपको देखना है किस तरह से ये अपडेट हो रहा है। देन एनुअल रिपोर्ट्स हैं। देन आप देखिए AICRP, ICAR अवार्ड्स, यहाँ पर इंस्टीट्यूट, ये आपको देखना है। देन डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट्स में आप देखिए एनुअल रिपोर्ट्स देख लीजिए, कौन कौन सी बुक्स हैं, कोई नई बुक आई है, कौन कौन सी मैगजीन्स हैं, हिंदी मैगजीन्स हैं, क्या आया। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू शुड क्लिक, हैव अ हैबिट ऑफ क्लिकिंग ऑन दिस डिवीजन। सो सारे डिविजन्स में आप क्लिक करते रहेंगे। सो इन ऑल डिविजन्स ICAR अपडेट्स व्हाट इज न्यू हैपनिंग इन दैट। For example, if you click into agriculture extension, so if you click onto agriculture extension, you will find KVK. See all the latest information with respect to KVK. How many KVK are present in which zone? Which zone has the highest number of KVK? Newly established KVK. Which KVK is the latest KVK? That kind of information you will find here updated. Then what are the activities? What are the achievements? And then growth of KVKs. You will find everything in this agriculture extension division. Likewise, you can visit each and every division and you will find out what is happening into ICAR and international national platform, right? So this is the area where you should look. ICAR website में जाना सीखें और इसको देखें।
और इसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इस वेबसाइट में क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे हार्नेस कर सकते हैं आईसीआर वेबसाइट को, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। नाउ जब आपने इतना सब कार्य कर दिया, सब कुछ कर लिया, पूरी किताबें पढ़ ली, द बुक्स विच आई हैव रिकमेंडेड यू, यू हैव कवर्ड ऑल द बुक्स, ऑल द यूनिट्स, नाउ इट्स टाइम टू रिवीजन। सो एक बुक आपने जीआरएफ के टाइम पे रेफर की होगी, बाई सुभाष चंद्रा, सुरेश कुमार एंड कैलाश चंद्र बैरवा, एन इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर सोशल साइंसेज। तो इसमें देखिए आप एक्सटेंशन एजुकेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप चाहें तो इसको रिवीजन कर सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव में बड़ा हेल्प करेगा। और यूनिट्स आर देयर, और बहुत अच्छे से कवर किया है इन्होंने, यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो एक रिवीजन ये कर लेना है। देन अगेन देयर इज अ ऑब्जेक्टिव बुक, वी ऑल नो सुनील वीजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन, रूरल डेवलपमेंट, रूरल सोशियोलॉजी, एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च मेथोलॉजी, मैच द फॉलोइंग, लॉजिकल क्वेश्चन, माइंड मैप्स, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिटेल सिलेबस इज मेंशन दिस बुक। इस बुक को भी लाइन टू लाइन बना लेना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अनदर बुक, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय सुनील वीजी, you can see the content. Again you can use this book as a revision book. There is again book, instant extension education by Shruti, again use it. A brief book on extension education by Shruti and Madan Singh, again use it as a revision book on subject. एक और क्वेश्चन बैंक बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, क्वेश्चन बैंक इन एक्सटेंशन एजुकेशन बाय आसिफ मोहम्मद, के पुन्नुस्वामी एंड राजीव बलिराम काले। सो दिस इज अ बुक अगेन ऑब्जेक्टिव बुक। सो अगेन इसको ऑब्जेक्टिव के लिए आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बुक सुनील वीजी और क्वेश्चन बैंक इन एक्सटेंशन एजुकेशन मैं आपको रिकमेंड करूंगा। दीज आर द टू बुक्स रिटन बाय श्रुति एंड मदन सिंह, आई विल रिकमेंड यू फॉर रिवीजन। अगेन दिस बुक इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर सोशल साइंसेज फॉर रिवीजन। इतना सब आप कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में कमांड हो जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप हर तरह का क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सो इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा मैंने आपको बात बताई कि ऑनलाइन रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, खासतौर पर आईसीटी जेंडर और जो टार आईवीएलपी एनएटीपी वाला यूनिट है उसके लिए। इसके अलावा आपको आईसीआर वेबसाइट पर अगर आप चाहेंगे, आपको हैबिट होनी चाहिए कि आईसीआर वेबसाइट से आप अपना रोज अपडेटेड रखें अपने को। उसमें एनुअल रिपोर्ट एक आईसीआर अपना अपडेट करता है, तो एनुअल रिपोर्ट से कुछ एक्सटेंशन में कुछ नए प्रोग्राम्स आए, नए मॉडल्स आए, नए स्कीम्स चले, तो उनका नोट्स बना सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्कीम अगर आती है तो उसका नोट्स बना सकते हैं। और प्रोडक्शन डेटा का स्टैटिस्टिक्स, हमारा जो डेटा है एग्रीकल्चरल का, खासतौर पे राइस का प्रोडक्शन कितना हुआ, वीट का कितना हुआ, इंडिया का कौन सी क्रॉप में कौन सा रैंक है, कोई नई डिजीज तो नहीं आई, कौन कौन सी वैरायटी आईसीआर ने रिलीज की, नई वैरायटी कौन कौन सी रिलीज हुई, किस क्रॉप की रिलीज हुई, ये सब जो डायनेमिक पोर्शन है ये आपको इंटरनेट से करना है समय समय पे। तो आपकी हैबिट होनी चाहिए इन सबको एक जगह कंपाइल लिख के, एक डायरी बना के या एक नोट्स कॉपी बना के उसमें लिखते रहें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट रिकमेंडेड टू यू इज स्टडी टॉपिक वाइज नॉट आवर्स वाइज। मेरे हर वीडियो में देखते होंगे मैं हर बार बताता हूँ कि यू हैव टू रीड टॉपिक वाइज नॉट आवर्स वाइज। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखेंगे। एमसीक्यू जितना बनाएंगे, 2 बुक्स आई हैव रिकमेंडेड। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव बुक और अच्छी लगती है आप उसको बना सकते हैं। मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट एंड डेली रूटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट आईसीआर नेट। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो और आपको पता चला होगा कि व्हाट आर द यूनिट्स, व्हाट आर द टॉपिक्स एंड व्हाट आर द बुक्स and how you have to read those books. I have highlighted all important topics and all important books in this video. The next video will be on UGC NET JRF on adult education and extension education. So please like, share and subscribe my channel और जुड़े रहिए ऐसे ही academic और motivating content के साथ. So बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार and all the best.